You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That
गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। जितने लोग भी मुझे आज फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री। एंड ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि इस वक्त हम अपने सेट जो हमारा एक 7:30 PM टाइम था सैटरडे का, बिकॉज ऑफ आवर ट्रेवल हम लाइव वर्शिप नहीं कर रहे हैं ओवर द जूम। बट ये हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमें जिस हाल में भी रखेगा और जिस तरीके से भी रखेगा, उसमें परमेश्वर की मर्जी हो, परमेश्वर की ही महिमा। सो आज की इस वर्शिप को हम शुरू करते हैं। बहुत सारी चीजें थी जो पिछले हफ्ते हमारे पास थी, जो शायद आज नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो हमारे पास नहीं थी, आज परमेश्वर ने हमें दी। हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। भजन संहिता 30 में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर ये विनती की, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Psalm 30। It's written here, I will extol you, O Lord, for you have lifted me up and have not let my foe rejoice over me. O Lord, my God, I cried out to you and you healed me. O Lord, you brought my soul up from the grave. You have kept me alive that I should not go down to the pit. Sing praise to the Lord, you saints of his, and his thanks to the remembrance of his holy name. For his anger is but for a moment. His favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Now in my prosperity, I said, I shall never be moved. Lord, by your favor, you have made my mountain stand strong. You hide your face, and I was troubled. I carried out to you, O Lord, and to the Lord I made supplications. What profit is there in my blood when I go down to the pit? Will the dust praise you? Will it declare your truth? Hear, O Lord, and have mercy on me. Lord, be my helper. Amen. So एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस वक्त हम उसकी उपस्थिति में हैं। होली स्पिरिट, थैंक यू सो मच, यू आर हियर। सो आइए आज की इस वर्शिप को शुरू करते हैं। और एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हम लोग फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव हैं। अगर आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उनको लिखें ताकि हम एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन आपके लिए दुआ कर सकें। इफ एनीबडी हैज एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और कमेंट सेक्शन. We'll be taking care of and will surely pray for that.
लेट्स बिगिन आवर वर्शिप। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीती रात के लिए परमेश्वर कि आपने हमें संभाला परमेश्वर, और इस जिंदों की जमीन पे कायम रखा परमेश्वर। हम उन तमाम आशीषों के लिए, उन तमाम प्लान्स के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो शायद हम नहीं समझ पा रहे थे, जो हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हमें पता था एज एन फादर यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग ऑफ आवर लाइफ परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु कि आज इस लाइव वर्शिप में परमेश्वर जितने लोग भी फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखने वाले हैं परमेश्वर, और इस वर्शिप को अटेंड करने वाले हैं परमेश्वर, उनमें से कोई भी खाली हाथ जाने वाला ना हो परमेश्वर। उनकी हर एक एक्सपेक्टेशन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से पूरा करते हैं परमेश्वर, और ये हमारा विश्वास है परमेश्वर कि इस वर्शिप में परमेश्वर उनकी उन सारी एक्सपेक्टेशन परमेश्वर, उनका जो खालीपन है परमेश्वर प्रभु यीशु आपकी सामर्थ और आपकी आत्मा से पूर्ण हो चुका होगा परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को परमेश्वर आप चंगाई के वर्शिप बनाइए परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को परमेश्वर उन फाइनेंशियल रुकावटों के लिए परमेश्वर जो प्रभु बहुतों के घरों में है, भरपूरी देने वाला बनाइए परमेश्वर। जिनके मनों में प्रभु जी दुख है परमेश्वर, शोक है परमेश्वर, वहां पे रिजॉयस और हैप्पीनेस भरने वाली बनाइए परमेश्वर। जो परमेश्वर आपको नहीं जानते हैं प्रभु यीशु, अगर इस वर्शिप को सुनते हैं परमेश्वर, उनके अंदर वो भूख हो परमेश्वर, वो एक्सपेक्टेशन हो कि वो आपको जानने वाले हो सके और आपके पीछे आने वाले हो सके परमेश्वर। मैं एक बार फिर से प्रभु अपने आप को ऑडियो क्रॉस से जुड़े हर एक सदस्य को परमेश्वर, जितने लोग भी प्रभु यीशु इस वक्त इस वर्शिप को देख रहे हैं प्रभु यीशु, उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा आप अपना कंट्रोल लें और होने दीजिएगा परमेश्वर की ये वर्शिप सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए हो, ना कि किसी मनुष्य की परमेश्वर। आगे आने वाला पूरा सप्ताह परमेश्वर आपके हाथों में, आगे आने वाला मंथ प्रभु यीशु आपके कंट्रोल में, सब कुछ प्रभु आप संभालने वाले हो एज एन फादर, एज एन अब्बा, ना कि हम परमेश्वर। हमारी बुद्धियों पे, हमारे मनों पे, हमारी सोच पे परमेश्वर, हमारे चाल चलन पे आप अपना कंट्रोल लें, हमारी समझ पे आप अपना कंट्रोल लें परमेश्वर, क्योंकि आपका कंट्रोल हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। एक बार फिर से प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वर्शिप के लिए। आप संभालें, आप बढ़ें और हम घटें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन। सो वचन में जाने से पहले हम लोग जो पूरे सप्ताह हमारे पास में प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, मैं उनमें जाना चाहूंगा, और ताकि हम उनके लिए एज एन कॉन्ग्रीगेशन और एज एन फैमिली प्रेयर कर सकें। प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर पाउला जी के लिए कि जो कि हॉस्पिटल में है, हम परमेश्वर से उनकी चंगाई के लिए दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे ईशा बहन के लिए कि जो अभी डॉक्टर के यहाँ विजिट किया है उन्होंने, और बॉस्टन में है, परमेश्वर उनकी जो भी कमी घटी है एज एन बॉडी इस शरीर में, परमेश्वर उसको पूर्ण रूप से भरने वाला हो सके और ठीक करने वाला हो सके। हम निवेदिता जी के लिए दुआ करेंगे जो कुछ परेशानियों को, जो कुछ डिफिकल्टीज को महसूस कर रही हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, परमेश्वर उनको भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ से भरे, और जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस है एज एन न्यू ऑफिस, एज एन न्यू वर्क प्लेस, परमेश्वर उसको भी पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में ले। हमारे बेथल मेथोडिस्ट चर्च में कन्वेंशन होने जा रही है एनुअल, हम उस बात के लिए भी दुआ करेंगे ताकि सारा प्रोग्राम परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की मर्जी में होने वाला हो सके। रेवरेंड ग्रेस इडा राजन जी के लिए दुआ करेंगे कि अभी आने वाले समय में वो एक बाइबल ट्रांसलेशन के लिए इनवाइट आया है श्रीलंका, शी इज गोइंग। सो परमेश्वर उनकी उस ट्रेवल को, इस प्लान को बहुत आय से आशीषित करे और अपने कार्य और अपनी महिमा के लिए यूज करे। हम दुआ करेंगे सिस्टर नीलम माइकल के लिए कि परमेश्वर उनको एक बच्चे की आशीष देने वाला हो सके।
हम दुआ करेंगे, एक छोटा बच्चा है जिसका नाम हर्ष है और वो इस वक्त वेंटिलेटर पे है। परमेश्वर उस बच्चे को अपने लहू की सामर्थ्य में ले और चंगाई दे करके उसको उसके घर तक पहुंचाने वाला हो सके। हम दुआ करेंगे बहन आशा के लिए जो कि हॉस्पिटलाइज हैं और एविल स्पिरिट से ग्रसित हैं। परमेश्वर उनको भी अपनी सामर्थ्य से भरे और शैतान को और अंधकार की हर एक शक्ति और ताकत से दूर करे। हम दुआ करेंगे भूपेंद्र जी के लिए जो कि डेंगू से इस वक्त इन्फेक्टेड हैं और हॉस्पिटल में हैं। परमेश्वर इनको भी अपनी शिफा से चंगाई दे और जो भी डेंगू का इन्फेक्शन है वो जाता रहे। हम दुआ करेंगे अपने अपने नेशन के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए कि हमारी कंट्री में प्रभु यीशु का नाम बहुतायत से लिया जा सके और इन सब लोगों को परमेश्वर अपनी विजडम में रखे और अपने प्लान में रखे। हम दुआ करेंगे अपने अपने सभी ओल्ड एज बुजुर्गों के लिए जितने भी हमारे कांग्रीगेशंस में हैं कि परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ्य दे और अपनी अपनी आशीष से भरे। हम उन सभी यंगस्टर्स के लिए दुआ करेंगे जितने लोग भी इस वक्त अपनी एजुकेशन को खत्म करके नए जॉब के लिए देख रहे हैं, नए एम्प्लॉयमेंट के लिए देख रहे हैं। We'll continue to pray for Holy Cross कि हम as an family, as an congregation परमेश्वर के इस काम को आगे बढ़ाते रहें और उसके इस विश्वास में बने रहें। आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम जिस तरीके से भी हैं, जैसे भी हैं परमेश्वर आपके समक्ष एज एन ह्यूमन हो सकता है हम बहुत सारी चीजों को ढांपना चाहें, लेकिन हमें पता है एज एन फादर परमेश्वर आपसे कुछ भी छिपा नहीं। We cannot hide anything from you. As you have promised, you who have chosen us. आपने हमें चुना है। You have given the right to call you Father. Thank you, Father. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, धन्यवाद देते हैं इस वर्शिप के लिए, धन्यवाद देते हैं उन तमाम प्रार्थना निवेदनों के लिए, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर वो हर एक बीमारी जब चंगाई में तब्दील होगी, वो हर एक कमी घटी जब भरपूरी और बहुतायत में तब्दील होगी, जब वो फाइनेंशियल्स का कम होना जब बहुतायत से भरपूरी के साथ पाया जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होंगी, हमारे आंसू जब रिजॉइस में तब्दील होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए होंगे, आपके धन्यवाद के लिए होंगे। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं बीते समय के लिए, बीते सप्ताह के लिए परमेश्वर, कि आपने यहाँ बैठे हर एक जन को, हर एक सुनने वाले को संभाला है एज एन फैमिली। वरना कितने लोग थे परमेश्वर जो शायद आज की सुबह को नहीं देखने पाए, कितने लोग थे जिनके बहुत सारे प्लान थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन पवित्र आत्मा, ये हमारा विश्वास है कि ये सिर्फ आपकी मर्जी है कि हम आज की सुबह देखने वाले हो सके। जितने लोग इस वक्त इस वर्शिप में हैं वो आपको आपकी मर्जी में देखने और सुनने वाले हो सके। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर जो हमने लिए प्रभु यीशु, हर एक के साथ परमेश्वर बहुतायत के साथ में परमेश्वर पूरे हो, ये हम आपसे मांगते हैं, क्योंकि हमें पता है जीवन का देने वाले आप हैं, इस प्राण को देने वाले आप हैं, हमारे श्वास को देने वाले आप हैं परमेश्वर। वरना हम तो सिर्फ मिट्टी थे और हमें बना के परमेश्वर आप बहुत खुश हुए थे। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु आप अपनी वो सामर्थ्य दें, वो समझ दें कि हम उस इमेज को समझने वाले हो सकें जो आपकी एक्सपेक्टेशन हमसे है। हम उस बात को, उस प्लान को समझने वाले हो सकें जिनकी एक्सपेक्टेशन प्रभु आपको हमसे।
हम उस बात को समझने वाले हो सके परमेश्वर की आप इस धरती पे आकर के प्रभु यीशु आपने अपनी जान को दिया, हम इस बात के लिए समझने वाले हो सके कि आपने अपनी जान क्यों दी। कहीं ऐसा तो नहीं है परमेश्वर कि हम उन सारे कामों को फिर से कर रहे हैं, हमें वो समझ बुद्धि दीजिएगा। अपने देश के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, हर एक लीडर के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। हमें पता है परमेश्वर कि आपने हमें उस देश में रखा है परमेश्वर जहां पे सिर्फ आपकी आशीष है। उस जगह पे रखा है प्रभु यीशु जहां पे आपकी आशीष है। हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके कामों को आशीषित कीजिएगा परमेश्वर, उनको अपनी समझ अक्ल ज्ञान बुद्धि से भरिएगा परमेश्वर। हम अपने सराउंडिंग के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, अपनी सोसाइटी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, अपनी कॉलोनी के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, अपने शहर के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर कि इस रेडियस में, इस एरिया में परमेश्वर जितने लोग भी हैं प्रभु यीशु आपके नाम से आशीषित, उनकी हर एक कमी घटी जाती रहे परमेश्वर, हर एक बीमारी जाती रहे। हम इस बात के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। हम दुआ करते हैं परमेश्वर अपनी कांग्रीगेशन के लिए, अपने चर्च के लिए परमेश्वर। जो प्लान्स हैं चर्च के, जो इवेंट्स हैं परमेश्वर, वो आपके नाम से स्मूथ तरीके से होने वाले हैं परमेश्वर। जितने बुजुर्ग हमारे कांग्रीगेशन में पाए जाते हैं परमेश्वर, उन सभी को प्रभु जी आप अपनी शारीरिक सामर्थ्य से भरिएगा, उनको आशीष का कारण हमारे लिए बनाइएगा, हम उन्हें समझने वाले हो सके, उनसे बात करने वाले हो सके। जितने जवान प्रभु यीशु अपनी एजुकेशन को खत्म कर चुके हैं परमेश्वर, एक नए एम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं प्रभु यीशु, आप उनके लिए भी उन तमाम अपॉर्चुनिटीज को ओपन करिएगा परमेश्वर, क्योंकि ये सिर्फ आपके द्वारा हो सकता है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु हम एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वर्शिप से जुड़े हर एक जन की हर एक एक्सपेक्टेशन को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग प्रभु यीशु इस वर्शिप को देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, उनकी हर एक एक्सपेक्टेशन को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग अपनी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु देने वाले हैं या लिख चुके हैं परमेश्वर, उनके प्रार्थना निवेदनों को प्रभु यीशु हम आपके स्वर्गीय भंडार से पूरा करते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु की वो उनकी हर एक जरूरत, हर एक कमी घटी प्रभु यीशु आपके नाम से पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस वक्त आप हमारे मध्य में। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं और आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो वंस अगेन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की ये वर्शिप हम करने वाले हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की मर्जी है और हम एज एन कांग्रीगेशन, एज एन इंडिविजुअल परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सो आइए आज के वचन में हम आगे बढ़ते हैं, आज की वर्शिप को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज का जो एक टॉपिक है उसको हमने 3 वर्ड्स में लिया है, नेविगेटिंग लाइफ्स लॉसेस। सो थोड़ा सा कभी-कभी अगर हम लोग इस वर्ड में जाने से पहले इस टॉपिक के बैकग्राउंड को समझना चाहें तो शायद हमें लगता है एज एन इंडिविजुअल हमारी जिंदगियों में जो कुछ भी घट रहा है या जो कुछ घटने वाला है, एज एन इन फेथ हम परमेश्वर के हाथों में सारी चीजें देते हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल कितनी बार होता है कि जब हम रिसीवर साइड में है, जब हम प्रॉफिट साइड में बैठे हुए हैं, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे होते हैं। और अगर हमारा कहीं कुछ लॉस हो रहा है तो शायद हमें लगता है कि इनफैक्ट एट सम एक्सटेंट हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु क्यों। हम उनके सामने एक क्वेश्चन लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो यही वो वजह थी कि मैंने आज इस टॉपिक को लिया है एंड मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस टॉपिक के लिए तैयार किया कि इनफैक्ट मैं बोलूंगा समझाने में मदद करी पवित्र आत्मा ने कि हम किस तरीके से अपने उन लॉसेस को उस समय को जो शायद हमारे फेवर में नहीं थे, हाउ शुड वी रिएक्ट,
हमें किस तरीके से परमेश्वर की तरफ अपने उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को लेके आना चाहिए। एंड एक चीज बिल्कुल क्लियर है, एंड दैट इज गॉड्स वर्ड्स नीदर इग्नोर्स नॉर मिनिमाइज द पेनफुल रियलिटीज ऑफ लाइफ। God's word neither ignores nor minimize the painful realities of life. What happens? Inevitably, we and our loved ones will experience life's losses. Illness, aging, death, divorces, disability, losses of independence, unemployment, and financial losses, financial reversals. And let's come into the background of all those things. What is happening in our family, in our routine culture? Today's culture, in fact, prepares us for gain. Always. हम अपने बच्चे से कह रहे होते हैं तुम्हारे इतने मार्क्स आने चाहिए। हम एक नई जॉब के नेगोशिएशन में जा रहे होते हैं, देन एवरी टाइम हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम किस तरीके से एक अच्छा नेगोशिएशन कर सकें टुवर्ड्स आवर सैलरीज, आवर बेनिफिट्स। ऑलवेज हमारी नर्चरिंग जो हुई है टुवर्ड्स गेन। Again, I'll repeat. Today's culture prepares us for gain, but not for losses, not for loss. Always हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है, हमें हमारी खुशियों के लिए क्या करना है, हमें हमारी हैप्पीनेस के लिए क्या करना है, हमें हमारे रिजॉइस के लिए क्या करना है। ऑलवेज कि हमें रिसीवर एंड पे रहना है, हमें एज एन हमारी अपब्रिंगिंग ही हमारे परिवारों में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में शायद उस तरीके से हुई है कि हमें हमेशा रिसीवर एंड पे ही रहना है। बट बहुत कम लोग हैं जो शायद अपने परिवार में इन बातों को लेकर के बहुत what do we call it, स्पेसिफिक हैं, बिल्कुल तैयार हैं कि हमें हमारी डाउन द लाइन जनरेशन को सिर्फ गेन के लिए नहीं, लॉसेस के लिए भी तैयार करना है। नॉट ऑलवेज फॉर डांस बट मॉर्न एज वेल। हमें उस दुख के लिए भी तैयार रहना है, उसके लिए भी तैयार करना है। अगर आप हमारे साथ निकालें हिंदी बाइबल सबोपदेशक चैप्टर 3 एंड उसका वर्स 4 क्या कहता है? रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय। In English it's written here, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Praise the Lord. This is the verse जहां पे हमें परमेश्वर बता रहे हैं कि हर एक चीज का, हर एक के पॉइंट पे हमारी लाइफ में एक सेट टाइम है। अगर हमारे रोने का समय है तो हंसने का भी समय है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा छाती पीटने का समय है तो हमारा नाचने का भी समय है। If there is a time to mourn, then for sure the time to laugh is there. But what is happening? हम शायद उसके सेकंड फेज के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। Till the time we are receiving, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। Praise the Lord. बट अगर हमारे घर में किसी भी तरीके की इलनेस आ गई, कोई फिनेंशियल लॉस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डाइवोर्स हो गया,
व्हाट इज हैपनिंग, हमें अपने आप को जांचना चाहिए। क्या वाकई में हम उस वक्त उस परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले हैं, और वी आर पुटिंग एन क्वेश्चन मार्क, परमेश्वर मेरे साथ क्यों? Major losses throw us into unshattered territory. एक ऐसे एरिया को तैयार कर देते हैं जो शायद हमारी लाइफ में वो समय हम पसंद नहीं करते। And this is the point, we need to understand the dynamics of our loss in order to help us through it and back it living again. Praise the Lord. और ये वो समय होगा कि हमें अपने उन लॉसेस को, उन कमियों को, उस इलनेस को, उस एजिंग को, उस डेथ को, उस डाइवोर्स को, उस डिसेबिलिटी को, उस लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस को समझना होगा। तो why should not be put a question mark towards the God's blessing, but why? And how we can come back to live a life better again. Life-changing loss begins with bereavement, the agony of feeling that something or someone indispensable to us has been ripped away, leaving us feeling robbed. The moment हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे जीवन में ये कमी, ये घटी, ये लॉस क्यों हुआ है, ये दुख का समय क्यों आया है। कितनी बार होता है हमारे घर में किसी भी कोई लव वन होता है जो शायद हमारे बीच में नहीं होता है, परमेश्वर में सो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। और हम सब अपने अपने जीवनों में इस समय से गुजर चुके हैं। हमारा वेरी नियर एंड डियर फैमिली में होता है, बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है, दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। हम शायद अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते। और ये वो समय होता है जब परमेश्वर हमें बता रहा है अपने इस वचन से कि रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का समय है। A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. And then comes grief, searing emotions of overwhelming sorrow that are often accompanied by anger, distress, confusion, and helplessness. हमारे परेशानियों का, हमारे दुख का, हमारी तकलीफों का ये कुछ कारण है, ये पॉइंट है जहां से ये इग्नाइट होता है। गुस्सा आती है, हमें अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, हेल्पलेस हो जाते हैं, फिनेंशियली वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं। But and heart-rending spasm of weeping that shake us to our very core. As an individual, as an family, हम सब shattered हो जाते हैं। But again, my dear friends and sisters, God has promised with everyone, with all of us, there is a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Believe me, and we are seeing in our life right now. Praise the Lord. परमेश्वर हमारी बहुत सारी चीजों में एक समय आता है और वो समय हमें लगता है कि शायद सिर्फ रोने का है, सिर्फ परेशानियों का है,
हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती हैं, हमारे घरों में बीमारियां भी होंगी, हमारे घरों में लॉसेस भी होंगे, हमारे घरों में एंगर भी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, हर वो चीज होने लगती है जो शायद हमारी एक्सपेक्टेशन के बाहर थी, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। बट मेरे प्रियो, इफ वी हैव, rather than we are in faith, और परमेश्वर के उस प्रॉमिस को हमने पकड़ के रखा हुआ है, परमेश्वर हमें वो दिन जरूर दिखाएगा when we will say a time to dance and a time to laugh. नाचने का भी समय है और हंसने का भी समय है। This is what our God has promised with all of us. And this is the hard work stage of tears, memories, and heart-rending spasm of weeping that shakes us to our very core, to turn into our rejoice. We feel guilt and remorse over what we have said or done, or not said or done. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने उस फेस में, जब हम उस क्राइंग फेस में थे, वीपिंग फेस में थे, दुख में थे, तकलीफों में थे, कहीं हमने कुछ ऐसा तो नहीं किया है जिसके लिए हमें सॉरी होना पड़ रहा है? नॉट बिफोर ह्यूमन, बिफोर गॉड। And our heartache gives those around us opportunity to respond, offering the comfort and reassurance we need to begin healing. Praise the Lord. And believe me, have faith. This will be the point जहां से एक बार फिर से आपका वो comfort शुरू होगा, वो reassurance के साथ में एक नई healing, एक नई चंगाई। And this is God's protocol for healing broken hearts. ये परमेश्वर का एक प्लान है, एक प्रोटोकॉल है जो परमेश्वर टूटे हुए मनों को, हृदयों को, दिलों को, आत्माओं को जोड़ेगा। अदरवाइज हम हर वक्त सिर्फ इस बात में लगे रहेंगे कि परमेश्वर हमें देता रहे, मिलता रहे हमें। अगर हम फुल टाइम रिसीविंग एंड पे बैठे हैं, देन परमेश्वर इस बात को लेकर के हमें वो समझाने की कोशिश करता है हमारे उस टफ टाइम में, नो, देयर इज अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू लाफ, a time to mourn and a time to dance. मेरे साथ निकालें, if you have Bible, Deuteronomy chapter 34. What is written here? Then Moses went up from the plains of Moab to mountain Nebo, to the top of Sa, which is across from Jericho. And the Lord showed him all the land of Gilead as far as Dan, all Naphtali and the land of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the western sea, the south and the plain of the valley of Jericho, the city of palm tree as far as Zor. Then the Lord said to him, this is the land of which I swore to give Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I'll give it to your descendants. I have caused you to see it with your eyes, but you shall not cross over there. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. And he buried him in a valley in the land of Moab, opposite Beth-peor, but no one knows his grave to this day. Moses was one of 120-year-old and he died. So that was the promise परमेश्वर ने हमारे साथ किया है।
And God allowed them 30 days to mourn their losses and comfort one another before resuming the business of life. This is the promise God, परमेश्वर ने हम में से हर एक के साथ में किया है. I'll encourage each one of us, जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ में हैं और जुड़े हुए हैं, डिसहार्टेड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है. टफ टाइम आएगा, बीमारी भी आएगी, डेथ भी होगी, डाइवोर्स भी होगी, डिसेबिलिटी भी होगी, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस भी होगा, इलनेस भी होगी. बट God allowed them 30 days to mourn. एक टाइम होगा इस मौन के बाद में जब हम लव करेंगे, रिजॉइस करेंगे. One another before resuming the business of life. So take the time you need to do the work of mourning your losses, because Jesus said, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Matthew chapter 5 verse 4 says. मैं पढ़ता हूं आपके लिए. धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे. This is the promise of our God. And this is the only process in our life where we can navigate our losses, our life's losses, towards the glory of God. These losses, these illness, this aging, this divorce, this loss of anything, unemployment, is preparing all of us to move and to follow our Lord Christ, and to remain in that faith जो परमेश्वर ने हम सब से किया हुआ है. कि there will be a time कि जब वो हमें face to face देखेगा. अगर हमारी प्रिपरेशन उस तरीके से नहीं है, सो वो डिनायल भी होगा, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना होगा. टू अवॉइड दैट डिनायल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, अगर हमारी तैयारी आज है, सो उस दिन हमें एक्सेप्टेंस भी मिलेगी. अगर हमारी प्रिपरेशन आज नहीं है, सो डिनायल ही हमें मिलेगा. अगेन आई एनकरेज ईच वन ऑफ अस कि परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता में बने रहिए, क्योंकि बिना उस विश्वास योग्यता के हम उस परमेश्वर को उस वक्त नहीं देखने वाले पाएंगे, ना ही वो परमेश्वर हमें पहचानने वाला पाएगा जो उसने प्रॉमिस हमसे किया हुआ है. ही इज कमिंग सून टू टेक ऑल ऑफ अस. सो परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे. May God bless each one of us. If anybody has any prayer request, you can write in the chat box or comment section. We'll surely pray for you. May God bless you. परमेश्वर आने वाला समय, आने वाले सप्ताह आपकी उस विजडम में रख के जो परमेश्वर ने आपके लिए उन प्लान्स को चुना है और अपनी आशीषों से भरा है. आइए दुआ करते हैं. सामर्थ्य पिता, हम एक बार फिर से प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, उस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जो आपने हमें सिखाया, हमें बताया कि हमें किस तरीके से परमेश्वर उन लॉसेस को, उन कमियों को, उन घटियों को परमेश्वर, उन दुखों को किस तरीके से प्रभु जी उस विश्वास के द्वारा जो आपने हमसे किया है कि देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, वो रिजॉइस में टर्न होगा. ये हमारा विश्वास है. हमारी बीमारी चंगाइयों में कन्वर्ट होगी, ये हमारा विश्वास है. हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में तब्दील होगा, ये हमारा विश्वास है. हमारे फाइनेंशियल लॉसेस परमेश्वर बहुतायत के साथ में पूरे होंगे, ये हमारा विश्वास है. हमारे घरों में सुख शांति रहेगी, ये हमारा विश्वास है. हम आपके विश्वास में बने रहें एज एन फैमिली, एज एन कांग्रीगेशन. परमेश्वर ये विजडम आप हमें दीजिए और अपने प्लान में हमें रखिए परमेश्वर, ताकि वो दिन आए जिस वक्त प्रभु आप हमारे सामने हो प्रभु, हम पूरी तरीके से तैयार पाए जा सकें परमेश्वर. और ताउम्र परमेश्वर जो हमारी लाइफ के लॉसेस हैं परमेश्वर, आपके धन्यवाद और महिमा के लिए परमेश्वर हम टर्न आउट करने वाले हो सके.
सारी बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से परमेश्वर, जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उन सबको बहुतायत से आशीषित करिए। आपने सुना है और ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सैटरडे हम लोग अपने सेट टाइम 7:30 PM पे ओवर द जूम मिलेंगे, जहां पे हम एक बार फिर से 1-on-1 बैठ के परमेश्वर के वचन पे, उसकी प्रेजेंट वर्शिप के लिए अपने उस समय को देंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।